یہ بتائیں کہ یہ ان کی گفتگو بھی کیا ہوئی ہے؟ میں بتاتا ہوں، ہاں جی میں اس پہ آتا ہوں. میں صرف اگلا جو ہے آپ کے ساتھ سکور جو ہے وہ ڈسکس کر پلیز لوں. شیئر کریں. اب آپ دیکھیے پنجاب اسمبلی کے حلقے آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہاں کہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو بیوقوف بنایا گیا. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی یہ پلانڈ تھا سب کچھ، یہ اتفاقیہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا. وفاداریاں تبدیل نہیں ہو رہی. یہ حادثاتی طور پر Right. جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف یا مختلف دوسری جماعتوں کی طرف نہیں کیا جا رہا. یہ بالکل پری پلان تھا، اور پلان یہ تھا، اسکرپٹ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مظلوم معصوم نہتے بن کر یہ پی ٹی آئی کے امیدوار بن کے میدان میں اتریں گے. بلہ چھن گیا تھا. اب یہ بانی چیئرمین کی تصویر لگائیں گے اپنے پوسٹرز پہ اور یہ کیمپین میں نکل جائیں گے اور حلقوں میں جا کے یہ کہیں گے کہ بڑا جو ہے وہ ظلم ہوا ہمارے اوپر، اور اگر آپ بچانا چاہتے ہیں پارٹی کو اور بانی چیئرمین کو تو آپ ہمیں ووٹ کریں. تو یہ جب جیت جائیں گے تو یہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چار چار کر کے یہ پی ٹی آئی کو خیر بد کہنا شروع کر دیں گے. پنجاب اسمبلی کا حلقہ پی پی 48 پسرور، یہاں سے خرم ورک، ٹھیک ہے. پی پی 49 سے رانا فیاض، پی پی 240 سے محمد سہیل، پی پی 94 سے تیمور لالی، پی پی 96 چنیوٹ سے سردار ذوالفقار، راجن پور سے سردار خضر مزاری، پی پی 97 چنیوٹ سے ثاقب خان چدڑ، پی پی 195 سے عمران اکرم، پی پی 240 سے سہیل خان، پی پی 249 سے صاحبزادہ محمد گزین عباسی. یہ وہ لوگ ہیں حمایت یافتہ امیدوار جو اب نون لیگ کو پیارے ہو چکے ہیں. ابھی تک اور میں نے آپ کو PTI این اے کا نام بھی بتا دیا، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. جس وقت ابھی تو شروع ہوا ہے، جس وقت ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ تفصیلات شیئر کر رہے ہیں، اس وقت بھی میرے فون پر بہت سے میسیجز موصول ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. آج جو ہے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہے بنی گالا میں صبح سے اسی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ ان کو گھیر کے لایا جا رہا ہے تمام آزاد جیتنے والوں کو، اور وہاں پہ ان سے وعدے وعید ہو رہے ہیں، کمٹمنٹس ہو رہی ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. یہ جو ہے نا وہ دستیاب جو منسٹریز ہیں، جو عہدے ہیں، معاونین کے عہدے ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں، ان سے کمٹمنٹس کر رہے ہیں، اور وہاں ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. میں حیران ہوں کیا پلاننگز ہیں بھائی. آپ پولیٹکس کر رہے ہیں، آپ دعوے دار ہیں کہ آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں، تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کن لوگوں کی حمایت کا فیصلہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں. بیرسٹر گوہر علی نے جذبات میں ان کی نیت پہ نہیں شک کرتا، جی جی، یا ان کی سیاسی اممیچورٹی، کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین کو جو فگرز بتائے وہ سارے کے سارے الٹ ہو گئے، وہ ٹوٹل فگر غلط ہیں. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اب ان کو ہوش آنا شروع ہے، اور اب ڈیمیج کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جس پیس کے ساتھ اس وقت دوسرے لفظوں میں کہوں گا حملہ آور ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس 45 سے زیادہ لوگ بچیں گے جو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ بھی میں محتاط تعداد بتا رہا ہوں. یہ جو 100 کی بات کر رہے ہیں اوپر، ان کے ساتھ میرا نہیں خیال 35-40 کے قریب وہ لوگ جو کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ، اور وہ بھی ایک کہانی ہے. ان کی نیشتیں بھی اللہ جانتا ہے، لیکن میرے پاس ان کی بھی کچھ اطلاعات ہیں، وہ میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کو کس لیے اسپیئر کیا جائے گا. نہیں آپ نے شیئر تو ضرور کرنی ہے. کریں گے کیونکہ اپوزیشن بھی تو بننی ہے نا، اپوزیشن بھی تو بننی ہے، وہاں بھی تو کچھ اپنے لوگ چاہیے، اور اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن چاہیے. ہمیں وہ کنٹینر والی دھرنے والی تو اپوزیشن چاہیے نہیں. تو اس طرح سے ان کی بندر بانٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو بیرسٹر گوہر علی نے بالکل بھی ایک غلط رپورٹنگ کر دی جو فگر وہاں پہ پہنچائے، بالکل ہی غلط. ٹھیک ہے. اب یا تو ان کا اندازہ نہیں تھا، یا وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، اوور ایکسائٹڈ تھے، تو یہ انہوں نے کر دیا. مگر صورتحال پی ٹی آئی کے لیے
पी टी आई इस इलेक्शन में मेरी नजर में तीसरे नंबर की जमात है अभी तक। बिल्कुल ठीक बात की आपने, ये सब बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल कहीं से भी कोई इतना मार्जिन है ही नहीं कि पीटीआई टॉप पे लीड कर रही हो। आजाद उम्मीदवार थे जो टॉप पे लीड कर रहे थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो वन डिनाइज। लेकिन उनमें तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वो सारा के सारा एक प्लान था जी। और ये तीसरे नंबर की जमात है मेरी नजर में अभी तक पीटीआई। पहले नंबर पे नून लीग है नंबर्स में, फिर पीपीपी, और उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह की अटेम्प्ट उतनी तेजी से नहीं हो रही। नंबर जो है वो नून लीग के बढ़े तेजी से। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है फिलहाल 54 सीट्स के साथ। 79 पे जो है वो खड़ी है इस वक्त नून लीग। और इनके नंबर्स मैंने आपको बता दिए जो बचेंगे, जो नंबर बचेंगे वो इनके 50 से नीचे होंगे। वो 45 हो, 44 हो, 40 हो, 38 हो, ये नंबर्स होंगे, इससे ज्यादा नंबर्स नहीं होंगे इनके। अब मैं बात कर रहा था और दुख का इजहार कर रहा था कुछ अपनी बरादरी के लोगों जी। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है। मैं शुरू हो जाऊं तो बहुत से लोगों से मेरा ताल्लुक भी है, लेकिन चूंकि जब हम बात करते हैं एक हकाइक पे मबनी और सच पे मबनी अपने नाजरीन के लिए, तो हामिद मीर साहब से मैं शुरू हो जाता हूं। हामिद मीर साहब बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने एक वावेला मचा रखा है इलेक्शन से पहले से कि पता नहीं क्या होने जा रहा है और क्या हो गया है। कितना अच्छा होता कि आपका एक भाई जो है 1 साल से निगरान सेटअप में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना होता पंजाब में। आपको पंजाब में भी वजारत चाहिए। आपका दूसरा भाई जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नीचे पीपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा। सब पार्टियों में आप घुसे हुए हैं और आप अब पीटीआई में जगह बना रहे हैं। आपको पीटीआई के अंदर जो है वो अपने लिए वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, आपको रेटिंग भी चाहिए, और आप गलत बयानी भी कर रहे हैं। आप ये हकीकत बताएं ना, आप क्यों नहीं बता रहे? आप इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी निगरान सेटअप में उनके साले बहनोई उन्होंने भी वजारतें ली हैं। कितने मामनीन लगवाए हैं, किन किन ठेकों की बात करूं तो किस तरह आप सच बोल सकते हैं टीवी स्क्रीनों पर बैठ के? किस तरह सच बोल सकते हैं? मैं जो बात कर रहा हूं अभी, मैं ढाका में एंटी पाकिस्तान आपकी तकरीर की बात नहीं कर रहा जो आपने वहां पे जाके की एक अवार्ड के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप इतना भाषण देते हैं और इतने बड़े आप तजियाकार बनते हैं और मुल्क के आप सफ़े अव्वल के एंकर बनते हैं, तो आप ये जो मुराद हैं इनको कुर्बान करें ना। क्यों मिनिस्ट्रियां ले रहे हैं आप? क्यों आप टिकट्स ले रहे हैं पीपल्स पार्टी से? क्यों आप निगरान सेटअप में आपने अपने भाई को जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगवा रखा है 1 साल से? बहुत पते की बात की आपने। अभी इसके बारे में जब भी आप बातें कर रहे हैं ना, ये जो भी मिस्टर हामिद मीर हैं, इनके बारे में भी ये भी अभी खुल के सामने आ जाएंगी और चीज़ें वाजी और डिटेल हम लोग नेक्स्ट टाइम भी शेयर कर रहे होंगे। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप ही इसको डिस्कस करें और इसके हवाले से नेक्स्ट टाइम भी हमें नेक्स्ट सीरीज़ में ज़रूर बताएं। सर, मैं जब बात करती हूँ नई हुकूमत की तो अब चीज़ें कुछ क्लियर है। जैसे कि संडे का दिन गुजर गया है और सैटरडे को जब हमने लास्ट टाइम बात की थी नाजरीन के साथ, तो कुछ एहतजाज की बातें हो रही थी। अब तो चले आज़ाद उम्मीदवार जो है उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया पीटीआई को और नून लीग ज्वाइन कर ली है। अब मुझे बताएं, जब आने वाली जो हुकूमत है ऑब्वियसली नून लीग सामने नज़र आती है। वज़ीर आज़म की जब मैं बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है? अब देखिए, उसमें मुझे हैरत अंगेज तौर पे पहली मर्तबा कोई बहुत ज्यादा एक जो है जल्दी में, लालच में दोनों पार्टीज नहीं लग रही, ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी। मैं आपको बताऊं जी, ये बड़ी मेरे लिए हैरत अंगेज बात है। शायद वक्त से और हालात से कुछ सीखा है दोनों जमातों ने। और मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा अंदाजे कि वो वजारत उस्मा नून लीग ले लेगी पीपल्स पार्टी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोनों जमातें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, कोई भी दोनों में हार्डलाइनर नहीं है, कहीं भी कोई डेडलॉक ना है ना आएगा। ये जो डेडलॉक की खबरें हैं ना, ये चलवाई जाती हैं। हाँ जी, ये चीजें मैंने पहले भी अर्ज की थी
जो बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि अभी तय हो रही हैं, ये चीजें तकरीबन 1.25 साल पहले तय हो चुकी हैं। आपने पहले भी बताया था। ये तमाम मामला पहले से तयशुदा हैं। सदारत पीपल्स पार्टी अगर लेती है तो वजारत उस्मा नून लीग के हिस्से में आएगी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। सिंध जाहिर है एज यूजुअल वो तो आपने रजिस्ट्री करके दे दी। हाँ जी बिल्कुल, रजिस्ट्री कर दी आपने। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत के बाद आपने रजिस्ट्री कर दी सिंध की कि वहां पे कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। बलोचिस्तान जो है वहां भी मौलाना फजलुर रहमान है, पीपल्स पार्टी और नून लीग है, तो वहां भी एक प्रोसेस जरूर होगा सो कॉल्ड इलेक्शन का, लेकिन इन दी अदरवाइज वहां पे जो है कंसेंसस के साथ, और वो कंसेंसस बलोचिस्तान पे नहीं होगा, वफाक की जब आप बात करेंगे तो वहीं पे तमाम चीजें डिसाइड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक जो हो चुकी हैं। ठीक है, तो मे बी पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले बलोचिस्तान और सिंध में, और वफाक में नून लीग, पंजाब में नून लीग, और सदारत पीपल्स पार्टी को मिल जाए। अगर वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एक सरप्राइज होगा, अगर मिल जाती है तो फिर सदारत जो है मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ जाएगी और पंजाब जो है वो। अच्छा, अब हम अगर किरदार डिस्कस करना शुरू करें, उम्मीदवारान डिस्कस करना शुरू करें, तो उसमें भी हमें जो है इतना भाम नहीं रखना चाहिए कि इन फैमिलीज में ये सब कुछ ना, पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान में ये ओहदे बटेंगे, मेन ओहदे दोनों खानदानों में बटेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी पार्टियां जो हैं उनकी एक हिस्सा बकदरे जुस्सा जिसको कहते हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक, उनके नंबर्स के मुताबिक उनको मिनिस्ट्रीज जो हैं वो दे दी जाएंगी, जिसमें एमक्यूएम भी है, जिसमें आईपीपी भी है, जिसमें जेयूआईएफ है, जिसमें बाप पार्टी है। तो इस तरह से पीडीएम 2 इसको आप कह सकती हैं, पीडीएम 2 जो है वो बन जाए। और ये बात आपने इससे पहले भी कही थी, और जस्ट हैट्स ऑफ टू यू एंड योर इन्फॉर्मेशन कि व्हेनेवर यू आर पार्ट ऑफ द समा पॉडकास्ट यू ऑलवेज just sharing the most genuine information with the audience, and of course through Sama podcast channel, and it's a blessing for us. Thank you for being here, sir, and thank you guys for watching us today. And yes, you can see it here कि मिस्टर नईम की जानिब से आज हमने जो भी बात की है और भी बहुत जेन्युइन है और भी बहुत डिटेल्ड है, लेकिन और बहुत सी बातें जानने के लिए इलेक्शन से रेलिवेंट और पॉलिटिकल पार्टी से रेलिवेंट, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज. बाय बाय.